باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعن اللہ علی اعدائہم من یوم عداوتہم الی یوم الدین بے شمار۔ خاندان سیدہ پہ بلند سے بلند تر صلوات۔ دعا ہے میرے عظیم محسنین بانیان کی یہ پرخلوص بچھائی ہوئی صف ادا کریمہ آل محمد اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جتنے صاحبان ایمان اس صف ادا پہ موجود ہیں یا جو مزید آنے کا ارادہ رکھتے ہیں یا جو کسی مجبوری سے آ کے واپس آ چکے ہیں، سیدہ کلال قدم قدم پہ اجر عظیم عطا فرمائے۔ ضرور آمین کہیے گا اس چھوٹے شہزادے کے لیے، مولا کے مداح کے لیے، کریمہ آل محمد اس کی زبان میں، اس کے بخت میں مزید بلندی عطا فرمائے۔ جتنی دعائیں سکیر کے ذمے ہیں سب تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، شرف قبولیت عطا فرمائے۔ صلوات اتنی بلند پڑھ لیں کہ مجلس مزید رشک جنت ہو جائے۔ اللہ ناظم منبر صاحب شعر پڑھ کے چلے گئے، اچھا ہوتا یہاں ہوتے تو میں ان کے شعر کا جواب شعر میں دیتا۔ بہرحال آپ کی سماعتوں کے وسیلے سے ان تک آواز پہنچ ہی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ میرے عقیدے کی مجھ کو داد تو دیجئے، علی کے ہوتے ہوئے میں خدا کو مانتا ہوں۔ تو میرا جواب ان تک پہنچا دیجئے گا، سجدوں میں خدا ڈھونڈنے والوں سے یہ کہہ دو۔ جو ہاتھ اٹھایا اللہ کرے کسی دروازے کا محتاج نہ ہو۔ امام حسین بہت مہربانی، مجلس ہو گئی ہے۔ ملنگ بابا یہ تیرے اندر کا خلوص ہے، یہ مجلس کے وارث مجلس میں موجود ہیں، ورنہ میری خطابت کا یہ کمال نہیں۔ سجدوں میں خدا ڈھونڈنے والوں سے یہ کہہ دو، وہ جب بھی ملا ہے تو علی ہو کے ملا ہے۔ آیا کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اللہ ان ہاتھوں کو حسین کے روضے بسم اللہ۔ یہ نہیں ہے کہ میرا شاگرد ہے، میرا بچہ ہے۔ ذاکر حسین اور اس کی کم سنی اور اس کا اعتماد اور اس کا کانفیڈنس، مجھے پتہ ہے ہم بھی اس سن سے گزرے ہیں۔ اس سن کے بچوں میں اتنا اعتماد نہیں ہوتا جتنا اس میں ہے۔ تو میرا دل کر رہا ہے میں حسین کا ذاکر سمجھ کے اسے خراج عقیدت پیش کرتا چلا جاؤں۔ اس بچے نے اس کم سنی کی عمر میں منبر پہ آ کے پھر 2 رباعیاں مجمع میں کھڑے ہو کے پڑھ کے زمانے کے گرے بان کو جھنجھوڑ کے بتایا ہے، زمانے والوں آؤ، حسینی ہونے کے لیے عمر کا تعلق ہی نہیں ہے۔ آیا کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ امام حسین آپ کو سلام۔ جی کراں، جی کراں، جی کراں۔ اللہ آپ کی زندگی سلامت ہے۔ بہت شکریہ سے، بہت مہربانی سے، حصہ مل گیا، خیرات مل گئی، مہربانی جیو بلکہ میں 4 مصرے اس کے اعزاز میں پڑھ دوں، آپ کی عبادت کو اور 2 اچھا کر دوں۔ اس بچے نے بھری ہوئی محفل میں حسین کا ذکر کر کے زمانے کو بتایا ہے، زمانے والوں میں سن میں چاہے صغیر ہوں پر علی کے در کا فقیر ہوں۔ نہیں مصرع کھا گئے آپ، مصرع کھا گئے آپ۔ چوتھا مصرع اگر زمین پہ گیا تو دکھ لگے گا، میں سن میں چاہے صغیر ہوں پر علی کے در کا فقیر ہوں، میرے دل میں دولت ولا کی ہے، میں جہاں میں سب سے امیر۔ آیا اللہ حکم ہوا ہے، پڑھنا میں کچھ اور چاہ رہا تھا،
काफ़ी सारे दोस्तों का हुक्म हुआ है कि उसके फ़ज़ाइल के दो जुमले सुना जिसके अलम उठाते हैं। मेहरबानी से तो मैं पहला जुमला कहने जा रहा हूँ। कौन अब्बास ऐन बे अलिफ सीन को जोड़कर जिसका नाम बतूल रखे उसे अब्बास कहते हैं। अल्लाह। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे, इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। कौन अब्बास जो 18 लाख एक चेहरे पे 2 आंखें हैं और 9 लाख चेहरों पे कितनी थी? 18 लाख। जो 18 लाख आंखों से नींद छीन ले। सामने बैठने वालों का ज्यादा हक बनता है, सामने बैठने वालों का ज्यादा हक बनता है। चलो अभी भी नहीं बोले तो मैं सतर और बदल देता हूँ, सतर और बदल देता हूँ। सतर आसमान से आगे की हो तो फिर बोलिएगा, वरना चुप रहिएगा ताकि मुझे अपनी कमी का एहसास रहे, मैं मालिक से मज़ीद खैरात मांगूँ। बुजुर्गों से दुआ चाहिए, हम असर मेरा साथ दे देंगे। चलो शफकत आपके लिए तोहफ़ा है। जो तख्ते विला पे हो तो अली है, तख्ते वफा पे हो तो अब्बास है। आया अल्लाह अल्लाह अकबर। भजन सर ना हिलाइए, जुमला पसंद आए तो फिर ज़ुबान इस्तेमाल कीजिए, हाथ उठाइए। अल्लाह तुम्हें हिसारे विलायत अली में रखे। चलो मैं 2 मिसरे अली रज़ा भाई आप जैसे साहिबान अकीदत के लिए अपनी नमाज का सजदा समझ के पेश कर दूँ। कौन अब्बास अली का बेटा कसम अली की। पहुँचने वालों को मैं कहता हूँ आप मुझे उतने ही प्यारे हैं जितना सारा मजमा प्यारा है। सबसे बराबर की दाद आ रही है। आप 4-5 हजरात चुप बैठे हैं, चाहता हूँ आप भी मेरे कारवान का हिस्सा बन जाएं। अली का बेटा कसम अली की। मलंग बाबा सारी ज़िंदगी की शायरी एक तरफ, ये 2 मिसरे एक तरफ है। तो मैं तोहफा देने जा रहा हूँ, अगर कबूल कर लो तो मेरे हक में दुआ कर देना। अली का बेटा कसम अली की, अली है उसकी दलील ये है। अली का बेटा कसम अली की, अली है उसकी दलील ये है। जो बाप पर्दाए रब से बोला तो बेटा परचम से बोलता है। आया क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अल्लाह अकबर। मजलिस जन्नत हो गई है ना, मजलिस जन्नत। मेहरबानी बाबा जी मैं शुक्रगुजार हूँ। सैयदा आपको सलामत। जो बाप पर्दाए रब से बोला तो बेटा परचम से, बेटा परचम से। अल्लाह के वालिद को शिफा अता फरमाए, वालिदा को शिफा अता फरमाए। मेहरबानी। सर मैं फिर कह रहा हूँ, अली का बेटा कसम अली की, अली है उसकी दलील ये है। जो बाप पर्दाए रब से बोला तो बेटा परचम से बोलता है। काफ़ी सारे हाथ मेरे लिए दुआ के उठे हैं, तो मैं अपनी ज़िंदगी से एक प्यारा शेर बाबुल हवायत की शान का और पढ़ दूँ हैं। और वो चौधरी शफकत मेरे अंदर की बात है। हर दुश्मन ज़हरा को तहे तेग करेगा। अब इस पे मुझे दाद नहीं चाहिए, जनाब की तायीद चाहिए। पूरा सलाम छोड़ दिया है, सलाम का एक शेर सिर्फ पढ़ के मैं अपनी मंजिल को और खूबसूरत कर लेना चाह रहा हूँ। हर दुश्मन ज़हरा को तहे तेग करेगा, कायम ने उठा ली है अलमदार की कस्में। हाँ अल्लाह अल्लाह। कायम ने उठा ली है अलमदार की कस्में। कौन अब्बास जिस चीज़ का मुझे हुक्म है वो आसान रवीश ज़ाकरी नहीं है। अब मुझे नहीं पता कि मेरे हिस्से का टाइम कितना है, बड़ा जब इशारा हो जाएगा मैं छोड़ दूंगा। जितना मुकम्मल हो सका बात कर देंगे। शब आशूर, करबला का मैदान, हुसैन का खैमा, वहदत की तजल्ली। जुमला आपने ज़ाय कर दिया, ये लफ्ज़ ज़ाय कर दिया आपने। मैं फिर कह रहा हूँ, करबला का मैदान, शब आशूर, हुसैन का खैमा। बदल के कह दूं, फूल नए रुख से बांध दूं, नजर न आने वाले का जलवा। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे, इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ।
हुसैन कुर्सी सदारत पे बैठे हुए हैं, सामने 70 जानशीन हुसैन के, 70 जानिसार, 70 सिपाही वो ज़मीन पे बैठे हुए हैं। और आप जानते हैं कि करबला में कुल 72 थे। अब मेरा सवाल है, ज़रा सोचिए, एक तो हुसैन हो गए, 70 ज़मीन पर हो गए, ये हो गए 71। 72वां क्यों नहीं पढ़ा? 72वां मैं अब पढ़ने जा रहा हूँ। अब्बास हुसैन के पहलू में ऐसे थे जैसे मोहम्मद के पहलू में अली होते थे। क्या बात है, क्या बात है। इमाम हुसैन आपको सलामत। सर मैं शुक्रगुजार हूँ, सर मैं मौला शिफा अता फरमाए, तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। अगर नसर की तरफ जाऊँ, मुसज्जा मुकफ़ा इबारात का सहारा लूँ तो फिर वक्त मेरे हिस्से का यहीं बीत जाएगा। 40-45 मिनट की शफ़क़त भाई नसर छोड़ के दरमियान में से मैं मकसद की बात करूँ। शाम की मलिका इस रिवायत की राविया है। बीबी फरमाती हैं कि मेरा अब्बास भाई हुसैन के पहलू में ज़ानुओं के बल, घुटनों के बल खड़ा हुआ था। जैसे तशाहुद में बंदा बैठता है ना, तो घुटनों के बल बंदा खड़ा होता है। तो बीबी फरमा रही थी कि मेरा भाई घुटनों के बल खड़ा हुआ था, तलवार पे दोनों हाथ रखे हुए थे। अब इस जुमले की दाद, चूंकि जुमला बीबी का है, दाद भी सैयदा को जानी चाहिए। मेरे हिस्से की खैरात मेरे कशकोल में खुद बखुद ही आ जाएगी। बीबी फरमाती है, मैंने देखा तो मेरी आंखों के सामने मंजर ऐसा था, पर हुसैन के इशारे की देर है, शेर शिकार पे तैयार खड़ा है। आहा आहा आहा। इमाम हुसैन आपको सलाम। सर मैं शुक्रगुजार हूँ, सर मैं शुक्रगुजार हूँ। इमाम हुसैन आपको सलामत है। मजलिस नहीं करबला है, मजलिस नहीं जन्नत है। सैयदा आपको सलामत। अच्छा नारा लगाना हो तो जरा यक सुबान लगाया। शेर शिकार पे तैयार है, 70 जानिसार जमीन पे। मलंग बाबा है मेरी जिंदगी का निचोड़ जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ। वंजन दे 70 सिपाही जमीन पर, हुसैन कुर्सी सदारत पर। तो हमले से एक रात पहले, जिस दिन फौज ने हमला करना होता है ना, तो कानून है, दस्तूर है कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, सिपह सालार लश्कर, वो करता है फौज से खिताब, फौज का हौसला बढ़ाने के लिए, फौज को अपनी ताकत से आगाही देने के लिए। और इसी किस्म की बातें सरकार वफा ने अपने जानिसारों से की हैं। उसमें अब्बास ने 72 के फ़ज़ाइल पढ़े हैं, 72 की शान पढ़ी है, 72 का मकसद तख्लीक पढ़ा है, 72 के लिए करबला क्यों आना ज़रूरी था ये पढ़ा है। 2 हिस्से हैं इस खुतबे के। एक अपनों से खिताब किया अब्बास ने, फिर आधे हिस्से में बेगानों से खिताब किया है अब्बास ने। पहले अपनों वालों का सुन लो, अगर तुम्हारे मिजाज हुए तो फिर अगला हिस्सा भी पढ़ देंगे, वरना इसी पे मैं दुआ चाहूँगा आपसे। अब जहन में रहे, 70 जानिसार ज़मीन पर, हुसैन कुर्सी सदारत पर। अब मेरी तरफ देखिए अंकल जी, मैं जुमला बदल दूँ ताकि आपका जहन फिर मेरी तरफ गामजन हो जाए। 70 जानिसार मलंग जी ज़मीन पर, हुसैन कुर्सी सदारत पर, अब्बास पहलू में। मंजर ऐसा था, वशम्स वज़्ज़ुहाहा वल क़मर इज़ा तलाहा की तफसीर नजर आ रही थी। आइए 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 जनाब, इज्जत माफ वाजिबुल एहतराम इमाम हुसैन आपको सलामत है। गाजी सरकार ने किया है खिताब। अब जहां जगह मिले मेरे मेहरबानों को जरा बैठिएगा। कामरान भाई आ गए हैं, इनकी कामरानी के साए में मैं कुछ बातें आपसे कर लूं अगर इजाज़त हो तो। अब ये आप जानते हैं जो रवीश खिताबत में मिंबर से पढ़ने जा रहा हूँ, ये हर किसी के मुकद्दर में नहीं। भाई अली रज़ा यकीन करें, ये जिक्र पे मेरा हाथ है। कामरान भाई पता नहीं कितनी मुनाजातें मैंने पढ़ी होंगी, कितने आंसू सैयदा की बारगाह में रोले होंगे, किस आंसू पे हुसैन की माँ का तरस हुआ, जो ये खैरात इस नाचीज़ हकीर पस्त तरीन इंसान के कशकोल में उतरी। अब सुन लो, आगे आपका मुकद्दर है। गाजी 70 जानिसारों से खिताब करके, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हुसैनी का आखिरी खिताब है शब आशूर।
अब्बास फरमा रहे हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि मुब्दिहिल अनवार व यूलिजुल लैल फिन नहार अम्मा बाद अय्युहल अखयार व या अंसार अल्लाहिल अबरार ला तुफसिलू मिन हुजूमिल कुफ्फार व ला तुफसिलू मिन कसरतिल अशरार लिअन्नहुम कलाबुन नार व फिराशुल आसार व इन्नहुम कलाबुन नार व फिराशुल आसार कद अख्तारकुमुल्लाहु फी ज़र्रिल अव्वल नुसरत वलिय्यि व फरत नबिय्यि अलस्तुम तारिफूनी अना हैबतुल जब्बार। आहा क्या बात है। इमाम हुसैन आपको सलामत, इमाम हुसैन आपको, मेरी मजलिस होगी है, सैयद आपको सलामत रखे। अलस्तम तारिफूनी अना हैबतुल जब्बार अना तलाबतुल हैदर करार अना सैफ साहिब जुल्फ़िकार कद अख्तारकुमुल्लाहु फी ज़र्रिल अव्वल नुसरत वलिय्यि व फरत नबिय्यि कद अख्तारकुमुल्लाहु फी ज़र्रिल अव्वल नुसरत वलिय्यि अलस्तम तारिफूनी अना हैबतुल जब्बार अना तलाबतुल हैदर करार अना साहिब सैफ जुल्फ़िकार कदन वल्लाहु ज़क्किरु सलासिल यौमिल क़ियामा अहफरु हफरन बिहाफिरन असाब सैफी वला अज़नल इमाम अला अजल असाब सैफी वस्समा तुर्शी फलम्मा बालगा इलाहुन्ना अखबरा वाहिदा मिन्नी मिन अंसारी अबी अब्दुल्लाह हुसैन इन्ना रजला मिन अस्करी अहली शाम यतजस्ससु हौल ख़याम वल खंदक व वसबक लैसल मुनज़र व रकब अला फरसिही बिगैर सरजही व अमा बिल जयूश व नादा या नस्मतल फजूर व या रोज़ल खमूर कद अबाइकुम ततफस्सहुना हौल बैत नूर लैलतल हिजरतन व लम यतजासरु ऐन यतसव्वरु अला जिदार व कान अलीयुल हिजरत नाइमुन व अना अलीयुल हिजरत जुक़ज़ानुल। अल्लाह अल्लाह, मेहरबानी भाईजान, मेहरबानी भाईजान, बिस्मिल्लाह। इमाम हुसैन आपको सलामत है, इमाम हुसैन आपको सलामत है। वक़ान अलीयुल हिजरत नाइमन व अना अलीयुल आशूर युक़दान व तज़र्रु इला रब्बिही ऐन यसलकुम अलैलन लैलन सरमदन इला यौमिल क़ियामा इन्ना लकुमुल अमान व इज़ा तलल फज्र व सुबहिल असफर व लैसा लकुमुल अमान व युनादियकुमुल मौत बिन दून वल अमान व या जुंदा इब्लीस व हिस्ब शैतान। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बस इतना ही, अगर मेरे मजमे ने संभाल लिया तो यही मेरी बख्शिश के लिए, निजात के लिए, बुलंदी बख्त के लिए काफी हो जाएगा। जल्दी जल्दी भाई को मिंबर दूं। अब्बास 70 जानिसारों से अल्लाह की जुबान मुंह में रखते हुए, वही साज जुबान को इस्तेमाल करते हुए, कुरान अपनी जुबान से झाड़ते हुए अब्बास खिताब फरमा रहे हैं। मिसरा भाईजान पहला है, कामरान भाई आप दुआ कर देंगे मेरी मंजिल और खूबसूरत हो जाएगी। गाजी फरमा रहे हैं, याद रखना मुंतखब किबरिया ने किया है तुम्हें आले वहदत के तुम हो मददगार भी। अल्लाह 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 अल्लाह। इमाम हुसैन आपको सलाम। वया अंसार अल्लाहिल अबरार, रख मौलवी के सर पे, सिवाय इसके तर्जमा बनता ही नहीं है। अल्लाहिल अबरार, ऐ अल्लाह की आल के मददगारों। ना फटता है किसी कम सार्फ का कलेजा तो मेरी फला से फटे। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हवाला मांग लोगे, न दिखाऊं कब्र की दीवार तक तेरा मुजरिम हो। आवाज बचा के घर ले जा, फिर घर में लड़ने के काम आएगी और किसी काम नहीं आएगी। गाजी का ये कहना, अल्लाह की आल के मददगारों, ज़माने तक गाजी ने पैगाम पहुंचा दिया। अल्लाह औलाद नहीं रखता, आल रखता है। हाय हाय अल्लाह अल्लाह, क्या बात है। इधर वाले मेरे मेहमान राजी बैठे हैं, साथ चल रहे हैं मेरे। सैयदा आपको सलामत, अल्लाह तुम्हें हिसारे विलायत अली में रखे। इतनी तो औकात नहीं थी। इमाम हुसैन आपको सलामत है। मुंतखब किबरिया ने किया है तुम्हें आले वहदत के तुम हो मददगार भी। तुम ही किरदार के वो धनी हो, सुनो खुद मशीयत है जिनकी तलबगार भी। ना 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 ना, बेउस्तादा बंदा नहीं हो भी इतनी बड़ी दावत के बाद छोटे मयार का मिसरा पढ़ूंगा तो सोचता रह जाएगा मैं हवा के छौंके की तरह गुजर जाऊंगा। गाजी फरमाते लश्करे शाम को रोंद डालोगे तुम, लश्करे शाम को रोंद डालोगे तुम, लश्करे शाम को ये
بالکل ذہن میں نہیں رکھنا کہ وہ 9 لاکھ ہے اور تم 70 ہو. اپنی قلت کو نہیں دیکھنا, ان کی کثرت کو نہیں دیکھنا. وجہ غازی فرق بیان کر رہا ہے. لشکر شام کو روند ڈالو گے تم, چاہے کثرت میں ہے سارے اشرار بھی. کیوں؟ غازی فرما رہے ہیں تم فضائے طہارت کے طیور ہو, وہ نجاست کے کیڑے ہیں کفار بھی. آہا کیا بات ہے, کیا بات ہے. اللہ اللہ, تم فضائے طہارت کے طیور ہو. اللہ, امام حسین آپ کو سلامت ہے. تم فضائے طہارت کے طیور ہو, وہ نجاست کے کیڑے ہیں کفار بھی. کفار بھی, کفار بھی. نمازیں تو وہ بھی پڑھتے تھے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو وہ بھی پڑھتے تھے, الحمدللہ تو وہ بھی پڑھتے تھے, اللہ اکبر تو وہ بھی پڑھتے تھے, قرآن وہ بھی پڑھتے تھے. غازی کہہ رہا وہ کافر ہے. تو پتہ چلا مفتی اعظم کے بیٹے نے اللہ والی زبان سے فتویٰ دے دیا, حسین کا دشمن تخت اسلام پر بھی بیٹھا ہو تو کافر ہوتا ہے. کیا بات ہے. تھوڑا ہاتھ کیوں نہیں سمجھے بھائی جان, کا پسند نہیں آئی؟ جی کا نا, جی کا. امام حسین آپ کو سلامت ہے, امام حسین آپ کو سلامت ہے. تم فضائے طہارت کے طیور ہو, وہ امام حسین آپ کو سلامت ہے. تم فضائے طہارت کے طیور ہو, وہ نجاست کے کیڑے ہیں کفار بھی. ایک تشریح بھائی جان غازی سرکار نے اپنے خطبے میں استعمال کیا ہے. خدا کی قسم میری کروڑوں خطابتیں کما, قربان اس جملے پر. میری ساری بلکہ کروڑوں زندگیاں ہوں, ساری زندگی کی ساری سانسیں سجدے میں گزرے, پھر بھی اس کا حق نہیں ادا کر سکتا. غازی فرماتے بالکل نہیں گھبرانا, تم تھوڑے ہو تو بھی ٹھیک ہو, وہ زیادہ ہیں پھر بھی غلط ہے. مالا وجہ سرکار فرماتے حق کے پرچم کے سائے میں ہو تم سبھی, اٹھ کے بھی کھڑے ہو جاؤ نا تو مشرے کی قیمت نہیں ہے. جو دو کی محبت سمجھ کے ساتھ لے جاؤں گا, اسی دعوت اور دعا کو سیدہ کی بارگاہ میں بطور سفارش پیش کروں گا تاکہ بی بی مجھے مزید عرفان کی خیرات عطا کرے اور میں ساری زندگی یوں ہی علی والوں کی خدمت کرتا رہوں. غازی فرماتے حق کے پرچم کے سائے میں ہو تم سبھی, حق کے پرچم کے سائے میں ہو تم سبھی, وہ عدو شہنشاہ معظم کے ہیں. تم ہو دستے ولایت کے شیر ببر, وہ ازل سے ہی کتے جہنم کے. اللہ اللہ اللہ, وہ ازل سے ہی کتے. اللہ اللہ. امام حسین آپ کو سلامت ہے. وہ ازل سے ہی کتے جہنم کے ہیں. بس زیادہ پڑ گیا, تھوڑا سا اور سماعت فرما لیں پھر میں دعا چاہوں آپ سے. سفر مجھے بھی کرنا ہے, یقیناً مصروف ایام ہے, بھائی نے بھی پہنچنا ہے. پہلے مجھے بتائیں آپ کس شہر سے بنے ہیں؟ ہاں آگ پانی ہوا مٹی, لیکن عرف عام میں مٹی کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے نا جی. کس سے بنے ہیں جی؟ جڑے چپ ہو کسی اور شہر بنے ہیں تو بولو نا یار, بولنے سے عبادت میں اضافہ ہوتا ہے. ملان سی مٹی نال, کیوں بھائی جان مٹی سے بنے ہیں؟ سر مٹی سے بنے ہیں نا. امام حسین سر دعا فرما دیجئے اگر مصلی پہ بات یاد آئے تو. ہم سارے بنے ہیں, میں بھی, شفقت بھائی بھی, کامران بھائی بھی, ناظم ممبر صاحب بھی, مانی مجلس بھی, سارے عزادار بھی, ہم بنے ہیں مٹی سے. انسان کی تخلیق ہے مٹی سے. بھائی جان راز کھلنے جا رہا ہے, اگر کبھی یاد آئے تو بھائی کے حق میں بس دعا کر دیجئے گا, میرے لیے یہی کافی ہے. غازی فرماتے ہیں ذرے اول میں حق نے چنا ہے تمہیں. آئے آئے جڑا نہیں بولے اس حق ہی رکھے ہے میرا. اللہ ذرے اول میں حق نے
चुना है तुम्हें कद रख 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 मौलवी के सर पे कुरान दो तो कैमरे मुझे रिकॉर्ड कर रहे हैं, लाइव चला रहे हैं। किसी ने पर्सनली रिकॉर्ड करना है तो कर ले। गाड़ी तक जाते हुए ज्यादा से ज्यादा हवाला मांगोगे, न दिखाऊं कब्र की दीवार तक तेरा मुजरिम हो। गाजी फरमाते कद अख्तारकुमुल्लाहु फी ज़र्रिल अव्वल ले नुसरत वलीही व फरहत नबीही। गाजी फरमाते ज़र्रे अव्वल में हक ने चुना है तुम्हें, नूर ही नूर से फिर सजाया गया। अल्लाह 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 अकबर। जरा थक गया उन माफी है, जरा थक गया उन छुट्टी है। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। ज़र्रे अव्वल में हक ने चुना है तुम्हें, सर दामन उठा के दुआ कर रहा हूं, रहती दुनिया तक जब तक जिंदा रहा 5 नवंबर पढ़ता रहूंगा। आप राजी है भाईजान? 8 और 9 रजब इंशाल्लाह दोपहर के टाइम जश्न है ये समुद्री आपके मरकजी सलूनी शाहजाद अली अस्कर का जश्न है, वहां भी इंशाल्लाह बशर्ते जिंदगी हाजिरी होगी। 9 सफर तो मेरी अपनी मजलिस है, इंशाल्लाह मैं खुद बानी की हैसियत से, खिदमत गुजार की हैसियत से हाजिर होऊंगा। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। ज़र्रे अव्वल में हक ने चुना है तुम्हें, नूर ही नूर से फिर सजाया गया। मेरी तरफ देखे, छोड़ दें, इसने अपनी करनी है। नूर ही नूर से फिर सजाया गया। उसकी अपनी कुर्सी सदारत पे कौन बैठा है? कौन? हुसैन। अब ये इशारा गाजी का देखिएगा। गाजी फरमाते ज़र्रे अव्वल में हक ने चुना है तुम्हें, नूर ही नूर से फिर सजाया गया। उसकी अपनी विलायत का मालिक है जो। जरा चुप कर गया है और मैं की आखना दुआई कर सकता कि इंशाल्लाह बोलने की तौफीक होगी। क्यों भाईजान? यही कह सकता हूँ सर। ज़र्रे अव्वल में हक ने चुना, चौधरी शफकत घर तक दाद का नशा रहे तो फिर भाई के हक में दुआ करना। ज़र्रे अव्वल में हक ने चुना है तुम्हें, नूर ही नूर से फिर सजाया गया। उसकी अपनी विलायत का मालिक है जो, उसकी नुसरत का जौहर सिखाया गया। मिसरा सुनिएगा, गाजी फरमाते हो खुदाई का खासा तुम्हें इसलिए, हो खुदाई का खासा, उठ भी जाओ तो फिर भी मिसरे का हक नहीं है। हो खुदाई का खासा तुम्हें इसलिए, रिज़्क़े इश्क़े वली है खिलाया गया। आम मट्टी से बनते हैं बंदे, सभी तुमको करबो बला से बनाया। आहा, क्या बात है, क्या बात है। हाथ मलता रह गया अब्बास। मसाइब तो मैं पढ़ गया हूं, ये गिरिया दलील है कि मसाइब हो चुके हैं। ये मेरी खिताबत का कमाल नहीं। हाय हाय हाय, ये जिक्र की तासीर है। हाय हाय, बीबी के खुतबों का असर है। तेरे अंदर कमरे हुसैन है, सिर्फ जुमला नहीं है। सरकार सादिक का फरमान है, मोमिन की तखलीक के वक्त अल्लाह ने उसके वजूद में खाके शिफा की चुटकी रखी है। ये अर्श से टकरार होता है फज़ाइल, ज़ाकिर जो ही इशारा करता है सारे रो पड़ते हो। ये तुम्हारा कमाल नहीं, अंदर से खाके शिफा तड़पती है, फौरन रो पड़ते हो। अल्लाह तुम्हारा गिरिया कबूल फरमाए। हाथ मलता रह गया अब्बास। गाजी सरकार के इतने मसाइब हैं, पूरे अशरे में ख़त्म नहीं होते। लेकिन अगर कोई अज़ादार मुझे कहे ना सिर्फ एक फिक्रे में गाजी पढ़, तो फिर मैं पता भाईजान क्या करूँगा? नहीं पढ़ूंगा। अली की बेटियों ने जनाजा समझ के विदा कैसे किया? अमीर ही समझू ना उस बंदे को जिस जुमले पे भी हाय नहीं कर सका।
अमीर ही कह सकता हूं ना, जिसे गाजी की गुर्बत पे भी रोना नहीं आता, क्या रोएगा वो? इस शहीद पे ज्यादा रोया करो। मुझे बतूल के जख्मी पहलू की कसम, हुसैन से भी ज्यादा अब्बास को बतूल रोती है। खसाइसुल अब्बासिया भाईजान हवाला है इसका, अगर कोई पूछे तो बता सकते हैं आप। आयतुल्लाह गुलबासी अलैहिर्रहमा की किताब है खसाइसुल अब्बासिया। हुसैन से भी ज्यादा हुसैन की मां अब्बास पे रोती है। क्यों रोती है? इसलिए रोती है कि गाजी उतरा तो हुसैन की आवाज आई, अला अनका सरा ज़हरी, मेरी कमर टूट गई। अज़म अल्लाह हुजूरकुम तकब्बल। जिस पे बतूल ज्यादा रोए उस पे तो तुम्हें भी ज्यादा रोना चाहिए ना। नहीं पढ़ूंगा अली की बेटियों ने जनाजा समझ के विदा कैसे किया, नहीं पढ़ूंगा गाजी ने दरिया से मशकीज़ा कैसे भरा, नहीं पढ़ूंगा गाजी के बाजू कैसे कलम हुए, नहीं पढ़ूंगा सर में गुर्ज कैसे लगा, नहीं पढ़ूंगा बगैर बाजुओं के गाजी ने जीन कैसे छोड़ी। सिर्फ एक फिक्रे में गाजी की मुकम्मल शहादत। जो अदब सुन के रोने के आदि हो उनके लिए जुमला कहने जा रहा हूं। 28 रजब अली की बेटियों का पहला कदम बाहर आया, गाजी शहीद हो गया। मरहबा मरहबा। भाई कह रहे हैं कदम बाहर आने से भी पहले जब फहरिस्त तैयार की है ना, भाई आपने रोका है, बिजली का तो पता नहीं कब ये सही करे। मैं 4 मिसरे मुझे याद आ गए। फहरिस्त में रसूल की सांसों का नाम लिखकर, मेरी आवाज आ रही है। फहरिस्त में रसूल की सांसों का नाम लिखकर, गैरत को इस्तराब है दुखियों का नाम लिखकर। करबल तलक का साथ जनाजा हुसैन के, गाजी तो कत्ल हो गया बहनों के नाम। गाजी तो कत्ल हो गया बहनों के नाम लिखा। हर शहीद का अली की बेटी ने नाम लेके बैन किया। हर शहीद का। आपकी रूहानियत बता रही है कि आप स्पीकर को नजरअंदाज कर रहे हैं। जब तार जुड़ जाती है ना अज़ादार की, कोई चीज रुकावट में बनती है। हर शहीद का अली की बेटी ने अज़ादारों नाम लेके बैन किया। अली अकबर गिरे तो आवाज आई, हाय अली अकबर। हाय अली अकबर। कासिम की लाश के टुकड़े उठाए तो आवाज आई, हाय हसन का यतीम। अली असगर के गले में तीर लगा तो आवाज आई, हाय अली असगर। ये कुरान मेरे सर पे, मुझे बतूल के जख्मी पहलू की कसम। जब हुसैन खाली अलम और मशकीज़ा खेमे लाए ना, अली की बेटी का पहला बैन आया, बाहिजा। मेरा सवाल है अज़ादारों से, अली की बेटी ने जो बैन किया वाह हिजाबा, गाजी के बाद चादर बच गई। सारे अज़ादार बोल के बताओ। शफकत भाई मैं तेरे मिजाज से वाकिफ हूँ, ज़ाकिर अहले बैत आपसे इजाजत चाह रहा हूँ। एक रिवायत मेरे सामने बेसाख्ता आ गई है, पढ़ दूँ? मुझे बतूल के जख्मी पहलू की कसम, चादर का बैन किया ना अली की बेटी ने, और होने वालों जब 13 ज़रबे चल गई ना, मर जाऊं ये जुमला ना पढ़ो। अल्लाह लानत करे शेमर हरामजादे पर। एक हाथ का सर पकड़ा, एक हाथ में हुसैन का सर पकड़ा, एक हाथ में सैयदा की चादर पकड़ा।
یہاں غازی کی لاش پڑی ہوئی تھی اور رونے والوں اب میں یہ ہاتھ جو ہے مجھے معاف کر دینا، کتاب کا نام ہے رمز المصیبہ، وہاں سے روایت تیرے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں۔ اور رونے والا حرام زادے نے بطول زادی کی چادر کو غازی کے چہرے پہ پھینکا۔ کتا بکواس کر کے کہتا ہے اسی کی حفاظت کے لیے تو اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ احسان کری یار ہم روکی ایک جگہ تے ایک جملہ ہر شہید کا سر نوکے نیزہ پہ بلند ہوا ہے۔ شفقت بھائی واحد عباس کا سر ہے جو نوکے نیزہ پہ بلند نہیں ہوا۔ تیرا کیا خیال ہے ان حرامیوں نے کوشش نہیں کی ہوگی؟ مجھے حسین کے آخری سجدے کی قسم ہے 9 مرتبہ پہ عددار والی رضا بھائی بلند ہوا ہے۔ تیرا کیا خیال ہے جو بندے چھپ کر گئے یا شاید میری آواز نہیں پہنچی یا جملہ انہوں نے سر سے گزار دیا ہے، تیرا کیا خیال ہے غازی کے سر کو قرآن سمجھتے تھے؟ نوکے نیزہ کو رحل سمجھتے تھے، بڑے احترام سے غازی کا سر اٹھاتے تھے۔ اور جاؤں جملہ نہ پڑھ سکوں اور رونے والا مقتل دربندی والا لکھتا ہے الٹا کے غازی کا سر زمین پہ رکھتے تھے، حرام زادے اوپر سے نیزہ مارتے تھے، رونے والوں غازی کا سر نیزے پہ بلند ہوتا تھا اور رونے والوں غازی کا سر جھٹکا لے کے زمین پہ آتا تھا اور رونے والوں کتا کہتا 10ویں مرتبہ پھر کوشش کر غازی کا سر نیزے پہ اٹھا، مر جاؤ مجھے بطول معاف نہ کرے اگر غلط پڑھوں تو، جو شیعہ ہو کے ہائے نہ کرے سر جھکا کے معافی مانگے۔ حکیم ابن طفیل کہتا ہے چاہے میں قاتل تھا، جواب میں کہتا ہے آ کے دیکھ کہاں مارو غازی کے سر میں جگہ کوئی نہیں۔ مرحبا مرحبا مرحبا، نیزہ مارو تو کہاں مارو، غازی کے سر میں جگہ کوئی نہیں رہ گئی۔ مرتے ہو تو مر جاؤ، جملہ چھپا نہیں سکتا، مجھے 12ویں کی غیبت کبریٰ کی قسم۔ اور رونے والوں اللہ لعنت کرے کھولی بے غیرت پہ، یہ حرامی کہتا شہمد سر میرے پاس لے آ، میں کوئی ایسا انتظام کرتا ہوں شام تک سر سنبھالنا نہیں پڑے گا اور معاف کر دینا۔ اور رونے والا شہداء کی لاشیں تڑپی، کربلا کے میدان میں زلزلہ آیا، بہنیں دیکھ رہی تھی، بیٹیاں دیکھ رہی تھی، ان کے سامنے حرامی نے ایک ٹوٹے ہوئے تیر کا ٹکڑا اٹھایا اور رونے والا ایک سرے سے رسی کو باندھا اور رونے والا غازی کے ایک کان سے دوسرے کان تک رسی کو گزار دیا اور رونے والا غازی کا سر گھوڑے کی گردن سے باندھا۔ عددارہ گھوڑا چلتا تو سر گھٹنوں سے ٹکراتا، گھوڑا رکتا تو سر زمین سے ٹکراتا۔